Welcome to We Learn. This is session 7 of technology commercialization. So in today's session we are going to discuss about innovation strategies. So here first of all we are going to discuss about first movers versus followers. After that we are going to discuss about imitation. Then we are going to discuss alliances. After that we are going to discuss about creativity and invention. Then we are going to discuss technology and innovation strategy. And at last we are going to discuss about types of innovation. So first of all let us discuss about first movers versus followers. So many entrepreneurs believe that the quick survive while the slow struggle. कुछ एंटरप्रेन्योर्स ये मानते हैं जो फास्ट हैं, जो फास्ट वर्क करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर्स, दे सर्वाइव इन द मार्केट वाइल द अदर्स स्ट्रगल इन द मार्केट. So the firm that leads the way with a new product or into a new market expects to lock in a competitive advantage that ensures superior profits over the long run. यहाँ पर क्या है, कोई भी एक जो फर्म है वो किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लीड करती है मार्केट में, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है एडवांटेज लेना है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और वहाँ से मार्केट से हमें प्रॉफिट को गेन करना है ओवर अ लॉन्ग रन. So here we consider the circumstances in which a pioneer may benefit from being a first mover. यहाँ पे pioneer means जो भी पहले से existing organization है या enterprise है वो first mover कहलाता है. So a first mover advantage is the gain that a firm attains when it is first to market a new product or enters a new market. कोई भी जो फर्स्ट मूवर है उसको इस चीज़ का एडवांटेज रहता है कि वो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अगर अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसका उन्हें बेनिफिट मिलता है. सो here we are going to discuss the next thing, that is emergent industries, mature industries and growing industries. So emergent industries are newly created or newly recreated industries formed by product, customer or context changes. emergent industries क्या होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो न्यूली क्रिएटेड होती हैं with the help of product, customer और context changes. प्रोडक्ट के बेसिस पर, कस्टमर के बेसिस पर या जो नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पर. सिमिलरली मैच्योर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? बेसिकली मैच्योर इंडस्ट्रीज हैव स्लो रेवेन्यू ग्रोथ. मैच्योर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका स्लो रेवेन्यू ग्रोथ होता है. दैट मीन्स उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी स्लो वो इनकर करते हैं उसे. सो हाई स्टेबिलिटी होती है एंड इंटेंस कम्पिटिटिवनेस. दैट मीन्स दे आर वेरी हाईली कम्पिटिटिव इन अ market conditions. The next one is growing industries. So the growing industries exhibit moderate revenue growth and have moderate stability and uncertainty. Growing industries जो होती हैं उनका moderate revenue growth होता है, उनकी stability होती है वो भी काफ़ी moderate होती है और uncertain होती है. Now we are going to discuss the types of industries and their growth. So here we have 4 columns. The first one is characteristics, then matureness, then growing and then emergent. So here revenue growth, जो mature industries होती हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर revenue growth की characteristic होती है उनकी. growing में moderate होता है ये और emergent में potentially काफ़ी fast होता है. mature में जो revenue है वो काफ़ी slow इनकर होता है. Similarly stability की अगर बात करें तो mature में काफ़ी हाई स्टेबिलिटी होती है, ग्रोइंग में मॉडरेट होती है, इमरजेंट में लो होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी, इट इज़ लो इन द मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस, मॉडरेट इन द ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाई इन द इमरजेंट वंस. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री रूल्स, द रूल्स आर फिक्स्ड इन द मैच्योर, देन दीज आर फ्लूइड इन द ग्रोइंग एंड दीज आर अनएस्टेब्लिश्ड इन द इमरजेंट enterprises. Then the last one is competitiveness. So the competitiveness is high in the mature ones and moderate in the growing ones and similarly low or none in the emergent. Now the next thing here is the pioneering. First mover firm has to bear the cost of promoting and establishing a product. जो pioneers होते हैं, जो first movers होते हैं, उन्हें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है अपनी
फर्स्ट प्रमोशन की. सो इंक्लूडिंग द पोटेंशियली हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. उन्हें कस्टमर्स को भी अवेयर कराना होता है, सप्लायर्स को भी अवेयर कराना होता है, तो ये सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है. Furthermore, due to the high uncertainty of emergent markets, it is subject to potential mistakes in product strategy and execution. यहाँ पर हाई अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पोटेंशियली उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो सब्जेक्टेड होती हैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग और एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग. Now the follower firm can learn from the pioneers' mistakes and exploit the market potential created by the pioneer. अब जो followers होते हैं वो जो pioneers organizations हैं उनके concept को follow करती हैं. उन्होंने ये देख लिया है कि उन्होंने क्या mistakes की थी pioneers ने, तो ये अपने आप को उनसे better create करती हैं यहाँ पर और उनको पीछे उनकी जो growth है वो इनसे better होती है. They have a better performance compared to pioneers. So some firms successfully exploit a follower strategy. कुछ firms जो होती हैं यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से exploit करती हैं जो followers की strategy है उनको. Now in many cases pioneer entrants tend to make a large and lasting impression on customers. जो pioneers होती हैं वो यहाँ पर काफ़ी lasting impression, that means अच्छा impression डालते हैं customers पर, and they obtain a strong brand recognition, and buyers often face high switching cost in moving their business to a later entrant. यहाँ पर क्या है, कस्टमर्स के ऊपर उनका अच्छा इफेक्ट होता है, उनकी अच्छी ब्रांड पोजीशन हो जाती है और बायर्स के ऊपर वो यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी स्विच हो जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड अगर अच्छी है तो कॉस्ट भी हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं इन अ बेटर वे. नाउ द सिंपलेस्ट रीज़न इन फेवर ऑफ अ first mover strategy is the ease of recalling the first brand name in a category. यहाँ पर सबसे सिंपल रीज़न है किसी भी फेवर करने का किसी फर्स्ट मूवर के लिए कि वहाँ पर जो रिकॉलिंग होती है वो ब्रांड की वो ईजिली हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. देन however one study found that pioneers gained significant sales advantage but incurred large cost disadvantages relative to a fast follower entrant. एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि जो पायनियर्स होते हैं उनको हाई गेन मिलता है अगर हम सेल्स की बात करें, एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन कुछ उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं रिलेटेड टू दी फॉलोअर्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इमिटेशन. सो इमिटेशन इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. जो फ्लैटरी का बेस्ट फॉर्म है, ग्रेटेस्ट फॉर्म है, वो इमिटेशन माना जाता है. So many important new ventures have been based on the replication or modification of an existing business that the entrepreneur encounters through previous employment or by chance. यहाँ पर efforts किए जाते हैं, कुछ important ventures, new ventures create किए जाते हैं, replication perform होता है, modification होता है business में. So here entrepreneurs start a business because they believe that they can manage the business as well as or better than the example they are copying. यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिज़नेस को इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि वो अपने बिज़नेस को बेटर वे में रन कर सकेंगे, उनसे बेटर रन कर सकेंगे जिनकी उन्होंने कॉपी किया है या जिनसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है. नाउ द डिफ़िकल्टी ऑफ इमिटेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम द लैक ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सीलेंट बिजनेस एग्जाम्पल. नाउ फर्दर मोर the transfer of the best business practices from one setting to another can be fraught with unforeseen uncertainty. जब भी हम किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, सेट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ अनफोर्सिन अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, रिस्क्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं होता क्या रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में. सो दे आर मैनी रिस्क्स इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस. नाउ द थर्ड थिंग हियर इज imitation by independent entrepreneurs can be difficult because when they look at the existing business they cannot fully understand what makes it work. imitation जो होता है independent entrepreneurs के लिए काफ़ी difficult होता है क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि कोई एक business है उसको क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं, उसको उसकी वर्किंग में क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं, उसकी फंक्शनिंग में क्या हेल्प कर रही हैं. So thus the best approach is to copy it in detail but recognize that quick response to customer कमेंट्स विल बी नेसेसरी.
यहाँ पर इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि डिटेल्स को कॉपी करो, लेकिन यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि क्विक रेस्पॉन्स हमें कस्टमर को कैसे देना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग. Now let us discuss about alliances. So many business use competitive strategies to shape their business strategies but often ignore cooperative strategies. कुछ organizations competitive strategies को use करती हैं, shape करती हैं अपने market में, अपनी business organizations में, और ignore करती हैं cooperative strategies को. So business is a complex mix of both competition and cooperation. किसी भी अगर हम business की बात करें, market की बात करें, तो ये एक मिक्स ब्रीड होती है कंपटीशन की और कॉपरेशन की. सो अ न्यू वेंचर possesses valuable novelty and innovation that will attract the attention of suppliers, customers, competitors and complementers acting as a value network. किसी एक न्यू वेंचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट वैल्यूएबल नोवेल्टी आती हैं, इनोवेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं, विच आर देयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सप्लायर्स. ये अटेंशन गैदर करने के लिए होती हैं, अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं सप्लायर्स को, कस्टमर्स को और कॉम्पिटिटर्स को. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द वैल्यू नेटवर्क इज इम्पॉर्टेंट टू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एज दे स्ट्राइव टू accumulate the resources and capabilities required for success. अब यहाँ पे वैल्यू नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये शो करता है कि क्या क्या हमें रिसोर्सेज की या कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है किसी भी सक्सेस के लिए. सिमिलरली अ पार्टनरशिप और अलायंस इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर फर्म्स दैट एग्री टू कोऑपरेट विद वन अनदर टू अचीव म्यूचुअली कंपेटिबल गोल्स दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर रीच टू अकॉम्प्लिश अलोन. अब अगर हम पार्टनरशिप की या अलायंस की बात करें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए एग्री होती हैं so that they can achieve their common goals. Now here proactive firms take the initiative rather than react to events. यहाँ पर जो proactive firms होती हैं वो ही initiative लेती हैं. Now the next thing here is proactive formation of strategic alliances is an important dimension of entrepreneurial activity that enables a new firm to acquire access to unowned but required strategic assets. जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अलायंसेज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ न्यू फर्म. सो ऑल अलायंसेज आर बेस्ड ऑन सम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन एडिशन टू अ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स. जितने भी अलायंसेज होती हैं वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कैपिटल हो सकता है या टेक्नोलॉजी हो सकता है. सो अलायंसेज फंक्शन बेस्ट व्हेन म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड कमिटमेंट आर क्लियर टू ऑल पार्टीज. अलायंसेज तभी बेटरली वर्क कर सकता है जब दोनों पार्टीज़ या मल्टीपल पार्टीज़ के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लियर गोल्स होंगे और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अलायंसेज ऑफ ए स्टार्टअप इम्पैक्ट्स इट्स अर्ली परफॉर्मेंस. जो अलायंस का इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा इफेक्ट डालता है, दैट मीन्स वहाँ पर परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो एक्सटर्नल अलायंसेज कैन सब्सटीट्यूट फॉर इंटरनल रिसोर्सेज. जो हम एक्सटर्नल अलायंसेज की बात करते हैं, एक्सटर्नल रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो उससे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इंटरनल रिसोर्सेज को. सो अ फर्म्स डिसीजन टू एंटर एन अलायंस कैन बी मोटिवेटेड बाय ए डिज़ायर टू एक्सप्लॉइट एन एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी और टू एक्सप्लोर फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़. यहाँ पर फर्म का जो डिसीजन होता है वो बेसिकली इसलिए होता है, वो मोटिवेशन फैक्टर की तरीके से वर्क करता है. यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर किया जाता है और यू कैन से दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ इज डन हियर. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन. सो क्रिएटिविटी लीड्स टू इन्वेंशन एंड दस टू इनोवेशन. जो क्रिएटिविटी है वो ही इन्वेंशन को लीड करती है और उसी से इनोवेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू यूज़ द इमेजिनेशन टू डेवलप न्यू आइडियाज़. क्रिएटिविटी क्या है? ये एबिलिटी है जिसके थ्रू इमेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, न्यू थिंग्स जनरेट कर सकते हैं या न्यू सॉल्यूशंस कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग नाउ इज़ क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो टू इन्वेंशन एंड इन्वेंशन फ्लोज टू इनोवेशन. जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनसे इन्वेंशन होती है, इन्वेंशन से फिर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है जिससे कि इनोवेशंस पॉसिबल होते हैं. सो
Creative thinking is a core competency of most new ventures, and entrepreneurs strive to have creative people on their team. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी टीम में क्रिएटिव पीपल्स को ही रखते हैं, बिकॉज उसी के थ्रू हम न्यू प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्रिएटिव थिंकिंग लीड्स टू creativity and creative ideas. Now the next thing here is creative ideas often arise when creative people look at established solutions. Creative ideas तभी arise होते हैं जब जो creative people हैं वो पहले से ही जो solutions हैं उनको review करते हैं, practices को देखते हैं, products को examine करते हैं. Now let us discuss about technology and innovation strategy. So innovation is commercialized invention. Only about 6% of inventions developed by independent inventors actually reach our market. Innovation क्या है? commercialized invention होता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इसकी सिर्फ 6% inventions ही मार्केट तक पहुंच पाती हैं. So the success rate for inventions developed in established firms is about 4 times as high. जो सक्सेस रेट होता है इन्वेंशंस का वो 4 times हाई होता है. And however, once they are commercialized, inventions from startups or established companies experience about the same rate of success. और जब ये एक बार कमर्शियलाइज हो जाता है इन्वेंशन रेट, तो वहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज का एक्सपीरियंस है, वो भी ग्रोथ है, वो भी उतना ही इंक्रीज हो जाता है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है. Now there are basically 3 factors which influence the decision to exploit an independent invention through firm creation. यहाँ पे जो 3 factors हैं जो कि काफ़ी influence प्रोवाइड कराते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो हैं फर्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरप्रेन्योरियल टीम. जो इंटरप्रेन्योरियल टीम है उसका क्या इंटरेस्ट है. देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द इन्वेंशन वुड बी एक्सप्लॉइटेड. जिस इंडस्ट्री में हमें ये इन्वेंशन इम्प्लीमेंट करना है, परफॉर्म करना है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेंशन इटसेल्फ, और जिस इन्वेंशन को करना है उसकी खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज types of innovation. So basically innovation is based on teamwork and creativity and is defined as invention that has produced economic value in the marketplace. Innovation क्या है? Innovation टीम वर्क पर बेस करता है, डिपेंड होता है, क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है. So it is produced economic value in the marketplace. The next thing here is innovation is based on the commercialization of new technology. इनोवेशन की बात करें तो ये कॉमर्शियलाइजेशन पर बेस डिपेंड करता है किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी के. नाउ एन इनोवेशन कैन इंक्लूड न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोसेसेस, न्यू सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस. इनोवेशन की अगर हम बात करें, इनोवेशन का मतलब है न्यू वेज ऑफ डूइंग अ वर्क, कुछ नया करना, थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो हम यहाँ पर न्यू सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, न्यू वेज यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए. Now we are going to discuss the types of innovation here. Here the first one is disruptive innovation. So disruptive innovation transforms the relationship between customer and supplier, restructures markets, displaces current products and often creates new product categories. यहाँ पे जो disruptive innovation है उसकी हेल्प से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कस्टमर और सप्लायर के बीच में, रीस्ट्रक्चरिंग हम करते हैं मार्केट्स की, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं करंट प्रोडक्ट्स का. सिमिलरली जो आर्किटेक्चरल इनोवेशन है वो हम डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ करते हैं. लाइक आर्किटेक्चरल इनोवेशन चेंजेस द वे इन विच कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट आर लिंक्ड टुगेदर व्हाइल लीविंग द कोर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स अनटच्ड. यहाँ पर हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे लिंकिंग हुई है उसको देखते हैं, कोर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर टच नहीं करते हैं. Thus the components remain unchanged, but the architecture of the module connection is the innovation. जो components हैं हम उन्हें तो सेम रहने देते हैं, लेकिन जो architecture है वो different हो जाता है. So the overall architecture of the product designs describe how the components will work together. यहाँ पे जो architecture है वो ये शो करता है कि जो different components हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे work करेंगे. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what are the various types of innovation? Then the next question is,
what is imitation and alliances. So this is the end of today's session. Thank you.